जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणामहि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु 2 प्रकार से विचलित करती है। या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। लेकिन यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, तो फिर वह वायु उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिस पुरुष के मन इंद्रिय वश में नहीं है, उसकी इंद्रियां उसके मन को अपनी ओर आकर्षित करके या तो उसकी बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति के उपाय सोचने में लगा देती है, या फिर उसे पापों में प्रवृत्त करके उसका अधः पतन कराकर उसे डुबो देती है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं, उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, बल्कि बुद्धि रूपी नौका को परमात्म तत्व में स्थिर करने में सहायक होते हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि एक इंद्रिय ही मनुष्य के मन को विचलित करने के लिए काफी है और बुद्धि को भ्रमित कर सर्वनाश की ओर ले जाती है। केवल एक कर्णेंद्रिय के वश होकर मृग, स्पर्शेंद्रिय के वश होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के वश में होकर पतंगा, रसना इंद्रिय के वश होकर मछली और घ्राण इंद्रिय के वश में होकर भ्रमर अपने प्राण खो बैठते हैं। इतना ही नहीं, यदि स्वरूप स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य भी विनोद या कौतूहल से इंद्रियों का फिर से लालन पालन करना आरंभ कर दे, तो समझना चाहिए कि अब वह सांसारिक दुखों से व्याप्त ही है। As a rudderless ship does not reach its destination, so the mind that follows the wake of the senses does not contact Atman. By yielding to sense pleasures, mind gets more entangled in them. Therefore, senses are to be controlled if man is to come to live a better and more purposeful life, designed and planned for spiritual success. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 2 ശ്ലോകം 67. ഇന്ദ്രിയാണ ഹി ചരന്ത യന്മനോയനു വിധീയതി തദസ്യ ഹരതി പ്രജ്ഞാം വായുർനവമീ വാംബസി. വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വള്ളത്തെ കാറ്റ് ഉലയ്ക്കുന്നത് പോലെ ലൗകിക വസ്തുക്കളിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏത് ഇന്ദ്രിയത്തിലാണോ മനസ്സ് നിലകൊള്ളുന്നത്, ആ ഇന്ദ്രിയം തന്നെ ഈ അധാർമിക മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വെള്ളത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വള്ളത്തെ ശക്തമായ കാറ്റ് 2 തരത്തിൽ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ അത് വഴിതെറ്റുകയും ഉഗ്രമായ ജലതിരമാലകളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സമർത്ഥനായ തോണിക്കാരൻ ആ കാറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കിയാൽ ആ കാറ്റ് അവനെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവൻ്റെ മനസ്സിനെ തന്നിലേക്ക് തന്നെ ആകർഷിക്കുകയും
ബുദ്ധിയുടെ തോണിയെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും വിവിധതരം ലൗകിക സുഖങ്ങൾ നേടാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവ അവനെ പാപങ്ങളിൽ മുഴുകി അവൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമാവുകയും അവനെ മുക്കിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പുരോഗതിക്ക് അവ തടസ്സമാകുന്നുമില്ല. മറിച്ച് അവ ബുദ്ധിയുടെ തോണിയെ ദൈവീക തത്വത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ ശക്തമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കാനും ബുദ്ധിയെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും അതിനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും ഒരു ഇന്ദ്രിയം മതിയാവും. കർണേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ അഥവാ കേൾവിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മാൻ, സ്പർശനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആന, കാഴ്ചയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പട്ടം, രുചിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മത്സ്യം, ഇതെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം. ബുദ്ധിസ്ഥിരത കൈവരിച്ച അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാൾ വീണ്ടും വിനോദം കൊണ്ടോ ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടോ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവൻ ഇപ്പോഴും ലൗകിക ദുഃഖങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 67. ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనోను విధేయతే తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం వాయుర్నావమివాంబసి. ఎందుకంటే నీటిలో నడిచే నావను వాయువు అడ్డగించి ఏ విధంగా గమ్యముకు చేరకుండా చేయునో అదేవిధంగా విషయములందు సంచరిస్తున్న ఇంద్రియాల్లో మనసు ఏ ఇంద్రియంతో కూడి ఉంటుందో ఆ ఒక్క ఇంద్రియమే పురుషుని యొక్క బుద్ధిని హరించి వేస్తుంది. నీటి యందు తన గమ్యస్థానం వైపు ప్రయాణించు నౌకను పెనుగాలి 2 విధములుగా విచలితం గావిస్తుంది. అది దానిని స్థానభ్రంశం గావించి నీటి యొక్క భీషణ తరంగములతో తిప్పుతూ ఉంటుంది, లేదా అగాధమైన నీటిలో ముంచివేస్తుంది. అయితే తెలివైన నేర్పరి అయిన నావికుడు ఉన్నట్టయితే అతడు ఆ వాయువు యొక్క కార్యమును తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటాడు. పిమ్మట ఆ వాయువే ఆ నౌక గమ్యస్థానముకు చేర్చుటకు సహాయం చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఏ పురుషుని మనసు ఇంద్రియములు అతని వశం కాలేదో అతని ఇంద్రియములు అతని మనసును తన వైపు ఆకర్షించుకుంటాయి, లేదా అతని బుద్ధి అనే వాడను పరమాత్మ నుండి మరలించి అనేక విధములైన విషయ భోగములందు పొందు ఉపాయములను అన్వేషించుటందు లగ్నం చేస్తాయి, లేదా దానిని పాపములందు మరలించి అధపతనము గావించి ముంచివేస్తాయి. అయితే ఎవరి మనసు ఇంద్రియములు అతని వశముందు ఉండునో అటువంటి వాని బుద్ధిని అవి విచలితము గావించలేవు. అంతకు మించి బుద్ధి అనే నౌకను పరమాత్మ తత్వముందు స్థిరంగా ఉంచుటలో సహాయకారవుతాయి. ఇంద్రియాలు ఎంత ప్రబలమైనవంటే మానవుని మనసును విచలితం చేయుటకు ఒక ఇంద్రియం చాలు. అంతేగాక అతని బుద్ధిని భ్రమింపచేసి సర్వనాశనం వైపుకు తీసుకుని పోతాయి. కేవలం ఒక్క కర్మేంద్రియానికి వశమే లేడి, స్పర్శేంద్రియములకు వశమై ఏనుగు, చక్షేంద్రియములకు వశమై పక్షి, రసేంద్రియములకు వశమై చేప, ఘ్రాణేంద్రియములకు వశమై భ్రమరము తన ప్రాణములను పోగొట్టుకుంటున్నాయి. అంతేకాదు స్వస్వరూప స్థితిని చేరుకున్న మానవుడు గాని వినోదము లేదా కుతూహలముతో మరలా ఇంద్రియముల లాలన పాలన ప్రారంభించినట్టయితే ఇప్పుడు కూడా అతడు ప్రాపంచిక దుఃఖములచే నిండి ఉన్నాడని గ్రహించవలెను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. ఇంద్రియాణం హి చరతాం యన్మనో అనువిధీయతే తదస్య హరతి ప్రజ్ఞాం वायुर्नावमिवाम्भसि. जेना जल में चले वाला नाव के वायु हर लेते तहिना विषय सब में विचरित इंद्रिय सब में स मौन जाय इंद्रिय संगे रहते ओ एकटा इंद्रिय अयुक्त पुरुषक बुध के हर लेते। जल में अपन गंतव्य स्थान पर जाइत नाव के प्रबल वायु दू प्रकार से विचलित करते। कखनो तो ओय नाव के पथ भ्रष्ट क जलक भीषण तरंग सब में भटकबैत अछि आ कखनो ओहि नाव के अगाध जल में डुमा दैत अछि। मुदा जो एकटा नीक मल्लाह ओहि वायु क्रिया के अपन अनुकूल बना लैत अछि तऽ वएह वायु
ओकर गंतव्य स्थान पर पहुँचेबाक साधन बनि जाइत अछि। अहिना जाहि मनुष्यक मौन आ इंद्रिय सब वश में नहीं अछि, तकर इंद्रिय सब मौन के अपना दिस आकर्षित क कखनो तऽ ओकर बुद्धि रूप नाव के परमात्म से हटा क नाना प्रकारक भोगक उपाय सोचबा में लगा दैत अछि, आ कखनो ओकर पाप दिस मोड़ि क अधः पतन करबैत डुमा दैत अछि। मुदा जाहि मनुष्यक मौन आ इंद्रिय सब अपना अधीन रहैत अछि, ओकरा इंद्रिय सब विचलित नहीं करैत अछि, आ बुद्धि रूप नाव के परमात्म तत्व में स्थिर करबा में सहायक बनि जाइत अछि। इंद्रिय सब एतेक प्रबल होइत अछि जे मात्र एकेटा इंद्रिय मनुष्यक मौन के विचलित करबा लेल पर्याप्त अछि, आ बुद्धि के भ्रमित क ओकरा सर्वनाशक दिस ठेल दैत अछि। मात्र एकटा कर्णेन्द्रियक वश भ क हरिण अपन प्राण गमा दैत अछि, स्पर्शेन्द्रियक वश भ क हाथी वश में पड़ि जाइत अछि, चक्षु इंद्रियक मोह में पतंगा अपन देह जरा लैत अछि, रसना इंद्रियक वश भ क माछ आ घ्राणेन्द्रियक वश भ क भ्रमर अपन प्राण हारि दैत अछि। एतबे नहीं, जस्वरूप स्थिति में पहुंचल मनुष्य सेहो विनोद आ कौतूहल वश इंद्रिय सबके फेर सँ लालन पालन प्रारंभ क दैत अछि, तऽ बुझि लेबाक चाही जे ओ पुनः सांसारिक दुख के फेर में पड़ि जायत। जय गुरुदेव, जय पदशरणम. कारण ज्याप्रमाणे वारा पाण्यावर चालणाऱ्या बोटीला वाहून नेतो, त्याचप्रमाणे इंद्रियांनी विचलित झालेल्या इंद्रियांमध्ये ज्याच्याशी मन जोडलेले असते ती या अविवेकी व्यक्तीची बुद्धी वाहून नेते. एक जोरदार वारा त्याच्या गंतव्यस्थानाकडे जाणाऱ्या बोटीला दोन प्रकारे अडथळा आणतो. तो एकतर तिला रुळावरून घसरवून भयंकर लाटांमध्ये फेकून देतो किंवा खोल पाण्यात बुडवतो. तथापि जर एखादा हुशार नाविक वाऱ्याच्या कृतीत फेरफार करण्यात यशस्वी झाला तर तो त्याला त्याच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचविण्यास मदत करतो. त्याचप्रमाणे ज्या व्यक्तीचे मन आणि इंद्रिय नियंत्रित नसतात त्यांची इंद्रिये एकतर त्यांचे मन आकर्षित करतात आणि ते ईश्वरापासून दूर करतात, ज्यामुळे ते विविध सुखांचे चिंतन करतात किंवा ते पापामध्ये प्रवृत्त करतात, ज्यामुळे जे अधःपतन होते आणि बुडीज. परंतु ज्यांचे मन आणि इंद्रिय नियंत्रित असतात त्यांच्यासाठी ते त्यांच्या प्रगतीत अडथळा आणत नाही. उलट ते बुद्धीच्या बोटीला परमात्म्यात लंगर घालण्यास मदत करतात. इंद्रिय इतकी शक्तिशाली आहेत की एक इंद्रिय देखील एखाद्या व्यक्तीला मनाला विचलित करण्यासाठी आणि बुद्धीला गोंधळात टाकण्यासाठी पुरेसा आहे, ज्यामुळे संपूर्ण विनाश होतो. फक्त एकाच श्रवण शक्तीच्या नियंत्रणाखाली असलेले हरण, स्पर्श शक्तीच्या नियंत्रणाखाली असलेले हत्ती आणि दृष्टीच्या नियंत्रणाखाली असलेले पतंग, चवीच्या नियंत्रणाखाली असलेले मासे आणि वासाच्या नियंत्रणाखाली असलेली मधमाशी आपले प्राण गमावतात. शिवाय खऱ्या आत्मस्थिती प्राप्त केलेली व्यक्ती जर मनोरंजन किंवा कुतूहलाने पुन्हा इंद्रियांचे संगोपन करू लागली तर असे समजावे की तो अजूनही सांसारिक दुःखात बुडालेला आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.